I'm a professor of neurology and I've been teaching epileptology and neurology both in adult and children for the last 41 years. And you know, आप लोगों को सब ये पता होगा कि treatments of epilepsy क्या है, but today we are going to focus on levetiracetam. ठीक है, तो levetiracetam क्या होता है, क्या नहीं है, and how does it work and how effective it is, and how does it differ from other anti-epileptic drugs. So let's start. So the role of levetiracetam in managing epilepsy. ठीक है, तो हम जो बात करेंगे वो we'll talk about epilepsy is a chronic non-communicable disease of the brain that affects people of all ages. बच्चों में भी है, infants में भी है, neonates में भी सब में है. It is characterized by recurrent seizures which are brief episodes of involuntary movement that may involve a part of the body or the entire body. The risk of premature death in people with epilepsy is definitely higher than the normal population. So कितनी किस्म की epilepsy होती है? Focal, generalized, these are the main ones. Focal में क्या होता है? Focal seizures begin on one side of the brain and they may cause changes in awareness, यानी generalized हो जाती है, which is called secondary generalization, and behavior or sensations or abnormal movements usually on just one side of the body. It is possible for this type of seizure to spread. So focal onset with secondary generalization is the term used for these patients. उसके बाद generalized epilepsy क्या होती है? Generalized seizures are the one that begin on both sides of the brain at the same time. They usually cause loss of consciousness or awareness and may also cause abnormal movements on both sides of the body. तो अगर हम इनको डिस्क्राइब करें कि एपिलेप्सी या मिर्गी या सीजर्स क्या होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में यूज दीज मेडिकल टर्म्स व्हेन टॉकिंग अबाउट द मसल मूवमेंट्स मेड ड्यूरिंग सीजर्स. या तो टॉनिक होगा विद द मसल बिकम स्टिफ, या एटॉनिक होगा जहाँ ढीला हो जाएगा, उसको फ्लैसिड भी कहते हैं. एटॉनिक सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ मसल टोन, या माइक्लोनिक हो जाएगा जो बाकायदा जर्क्स हो रहे हैं, जर्किंग मूवमेंट, या फिर क्लोनिक हो जाएगा जिसमें पीरियड ऑफ रिदमिक शेकिंग और जर्किंग मूवमेंट वो कंटिन्यूस होता रहेगा. तो जेनेटिक चेंजेस अकरिंग इन फैमिलीज, फेमिलियल ट्रॉमा और इंजरी, अगर चोट लग जाए, कहीं जख्म हो जाए. दो किस्म का जख्म होता है, एक कंकशन होता है जो स्वेलिंग होती है, और एक कंट्यूजन होता है जहाँ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है ब्रेन में, एंड दैट्स अ परमानेंट डैमेज. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर्स और स्ट्रोक, इन्फेक्शियस डिजीजेज बहुत ज़्यादा है. पाकिस्तान इज फुल ऑफ इन्फेक्शंस सच एज meningitis, damage or injury to the brain during childbirth, brain development disorders such as autism. This is very important. I'm dealing with pediatric neurology for the last 4 decades now. So what are the common complaints or symptoms that patients present with? Loss of consciousness, बड़ा important है. Disturbance of movement, visual or auditory hallucinations, lost contact with the environment, lip smacking जैसे blanks में होता है या complex passage seizures में होता है, snapping fingers and repeated words. ये तो it is very important to diagnose. यार कभी कभार मैंने तो 41 years से मैं ट्रीट कर रहा हूँ पाकिस्तानीज़ को, 41 years. और कभी ऐसा भी हो सकता है even someone like a senior neurologist like me can make a mistake. Some of these psychogenic seizures can be difficult to diagnose. तो आपको पता नहीं होता है कि ये वाकई एपिलेप्टिक है, ये नॉन एपिलेप्टिक है. So sometimes you can have that. So what is the stigma? ये मुश्किलात क्या हो जाती है? Existing barriers and misconceptions regarding epilepsy क्या है? People with epilepsy are contagious. They are not. ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये इंडिविजुअल को हो सकती है. इंडिविजुअल को हो जाए तो उसको स्पोरेडिक कहते हैं, अगर फेमिलियल हो जाए तो उसको इनहेरिटेड कहते हैं. ठीक है. People with epilepsy are insane. They are not. You can have in fact, you can be even more intelligent than the normal people. So कोई intelligence में कुछ नहीं होता. Social isolation by community ये गलत है. You should not isolate them. और आपको मैं ये बता दूं कि epilepsy is a treatable disease. ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी है ही नहीं. And you all know that it can be treated. Difficulty finding job, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए. डिफिकल्टी मैरिज, ये भी नहीं होना चाहिए. लोकल कस्टम्स ऑफ बिलीफ्स, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ऑब्वियसली बड़ी महंगी दवाई हैं. सुपरस्टिशंस, लैक ऑफ सीजर नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर स्टिग्मास ऑफ एपिलेप्सी.
प्रेवलेंस क्या है, कितनी होती है? About 50 million people worldwide have epilepsy, making it one of the most common neurological disorder globally. तो दुनिया का सबसे common neurological disorder is epilepsy. Around 1/10 of the world's burden of epilepsy is in Pakistan. आप सोचें 1/10, 100 है दुनिया में तो 10 तो पाकिस्तान में है. It is estimated that up to 70% of people living with epilepsy could live seizure free if properly diagnosed. So 70%, 70% वो लोग हैं who are treatable. So it's a very, very good score actually. तो diagnosis कैसे होता है? How do you diagnose? तशवीश कैसे करते हैं? So it is first you suspect कि भाई ये हो सकता है ये दौरा हो. Perform history, physical examination, neurological examination, laboratory testing, EEG and neuroimaging. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो डायग्नोसिस की दो चीज़ें होती हैं, या तो डायग्नोसिस इज नॉट कंपैटिबल विद एपिलेप्सी और इट इज कंपैटिबल विद एपिलेप्सी. साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक सीजर्स, माइग्रेन, इवन सम ऑफ दी माइग्रेन्स के प्रेजेंट लाइक फिट एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड सिनकोपी. अगर हम बात करते हैं डायग्नोसिस में अगर एपिलेप्सी है तो फर्स्ट सीजर एंड सेकंड सीजर. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को एक दौरा पड़ जाए, ये सुने बड़े इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, यू यंग पीपल, एक किसी को दौरा पड़ जाए, ही इज नॉट एन एपिलेप्टिक, वो मिर्गी का मरीज नहीं है उसको अगर एक ही दौरा पड़ जाए. लेकिन अगर एक दौरा पड़ जाए और इसकी ईजी में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, सीजर आ जाए, देन ही इज एन एपिलेप्टिक. अगर एक से ज्यादा दो पड़ जाए और सीजर ईजी नॉर्मल भी आए फिर भी इज एन एपिलेप्टिक. तो अगर एक दौरा किसी को पड़ जाए तो देयर आर 70% चांसेस कि उसको नहीं पड़ेगा दोबारा. ऐसा नहीं होता कि वो एपिलेप्टिक है. तो ये याद रखें कि एपिलेप्सी मींस मोर देन वन सीजर. तो अगर एक दौरा पड़ जाए, नॉट अ हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट सीजर. हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट सीजर्स इंक्लूडिंग 2 अनप्रोवोक्ड सीजर, ये वो जो बात कर रहा था. एपिलेप्टिक फॉर्म एबनॉर्मलिटी, ईजी इज एबनॉर्मल ब्रेन इमेजिंग, individualized initiation of anti-epileptic drug based on patient preference. तो आप करेंगे क्या, दवाई शुरू कर देंगे. अब दवाई बहुत सी किस्म की है. अब जो मैं जिस ज़माने से शुरू की थी हमने 40 साल पहले, उसमें तो आपको वही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मिलता था, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन एंड वैल्प्रोइड. वैल्प्रोइड भी बाद में आई थी. इमेजिन करें अब तो जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं उसमें कम से कम 15 ड्रग्स आ गई हैं, जिसमें 4 से 6 ड्रग्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. सो थिंग्स आर मच बेटर. तो वी कैन ट्रीट 70% ऑफ द सीजर पॉपुलेशन. We can treat 70% of the seizure population with the drugs that are available even in this country called Pakistan. ठीक है जी. तो हाई रिस्क ऑफ रिकरेंट सीजर्स वो सब कुछ हमने देख लिया. इनिशिएट ट्रीटमेंट शुरू करें दवाई एंड स्टार्ट विद मोनोथेरेपी. रिव्यू ट्रीटमेंट एट ईच विजिट एंड एनुअली. अगर एक दवाई से फ़ायदा हो जाए दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट. बट हम नॉर्मली अब तो कॉम्बिनेशन ड्रग देते हैं. सो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में कौन कौन सी होती है? एक तो नैरो स्पेक्ट्रम होती है जो आप कुछ एपिलेप्सी में दे सकते हैं, और एक वो होती है जो हर किस्म के दौरे में दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम. दैट्स कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम. लेविटिरासिटाम, हम यहाँ से शुरू करते हैं. लैकोसमाइड, प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, कार्बामेज़ापिन, ऑक्सकार्बामेज़ापिन, एज़ोगैबिन ये नहीं मिलती, फेनिटोइन एंड वेगाबैट्रिन बाकी मिल जाती है. लेविटिरासिटाम, अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हो रही है. लेविटिरासिटाम विच इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रग टुडे even in the poor countries, even in पाकिस्तान तो अभी पुअर शायद इतना नहीं होगा. वैल्प्रोइक एसिड, क्लोनाज़ेपैम, पैरापामिल नहीं मिलती, क्लोबाज़ैम मिलती है, न कभी नहीं मिलती है, रुफिनामाइड मिलती है. ठीक है जी. तो these are the drugs. So broad spectrum AEDs treat a wide variety of seizures and the narrow spectrum treat only a focal or partial seizures. अब मैकेनिज्म एक्शन क्या है? अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार कि मैकेनिज्म एक्शन क्या है. कोई बता सकता है मुझे कि लेविटिरासिटाम पे हम बात कर रहे हैं, इसका क्या है, कहाँ पे काम करती है? बिल्कुल साइनेप्टिक वेसिकल पे करती है एंड दैट्स कॉल्ड 2A, साइनेप्टिक वेसिकल, एंड इट हैज अ वेरी अनयूजुअल मोड ऑफ एक्शन. ये मोड ऑफ एक्शन जो है इट इज नॉट फाउंड इन मेनी अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेविटिरासिटाम is to inhibit, इस तरह ने बताया, synaptic vesicle 2A and thus inhibit the release of glutamate into the synapse. Glutamate is a very notorious neurotransmitter. अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आदमी को मार भी सकता है. ठीक है ना.
So that is why it causes irritation to the neurons and causes epilepsy. The binding LEV SV2A improves the SV2A effects, diminishing the hyperexcitability and thus delays epileptogenesis. So this is exactly what levetiracetam does. और अभी तक after having been into the market for almost like 15 years, बहुत ज़्यादा knowledge अभी तक नहीं है लोगों का कि ये काम कैसे करती है, but it works. और दूसरी बात ये है, in a way it is also partly a calcium channel blocker. तो ये दो इफेक्ट्स हैं, एक तो सिनेप्टिक टर्मिनल पे करती है और दूसरा उस पे करती है. सो लेवेटिरासेटाम वर्सेस अदर एडी, तो क्या फ़र्क क्या है इन दोनों में? हम क्यों लेवेटिरासेटाम लिखें भाई? इसका जवाब क्या? जवाब ये है, ऑफर्स बेटर नंबर 1 टॉलरेबिलिटी, नंबर 2 फार्माकोकाइनेटिक्स एंड नंबर 3 मिनिमल ड्रग इंटरैक्शंस to valproic acid and carbamazepine. बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है फॉर द फीमेल, इट डज नॉट हैव एनी टेराटोजेनिक इफेक्ट्स. बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन को इंट्रैक्टेबल सीजर्स होने, अब क्या करें? तो आप लेवेटिरासेटाम दे सकते हैं, यू कैन बिल्ड अप अ डोज एज वेल. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये 4 चीज़ें हैं, इसीलिए ये ड्रग इतना पॉपुलर हो गया है. और AED is licensed for monotherapy in focal seizures with and without secondary GTCs. अब इसमें यह है कि हम ऊपर से शुरू करें, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रोजीन, लेवेटिरासेटाम, गाबापेंटिन, ऑक्सकार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, टॉपरामेट एंड वेलोप्रेड. इनकी सारों की इन्होंने डिटेल बताई हैं. यू कैन ऑल रीड देम हियर, बट दे ऑल हैव डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक्स. कुछ ज़्यादा इन्फीरियर है, कुछ ज़्यादा सुपीरियर है, बट लेवेटिरासेटाम इज डेफिनेटली number 1. Definitely number 1 in the world. In the US, we have 3 more drugs that have come up, but safety-wise, levetiracetam is still number 1 globally. ठीक है जी? तो guidelines क्या हैं? Guidelines recommended levetiracetam as the first line treatment in focal seizures. तो ये दो हैं, एक NICE National Institute of Health और Ontario का है, and they have put some guidelines which you can always read. Efficacy of levetiracetam. अब कितनी effective है यार ये? Number 1, the type of study that was done. ये सब इसमें आई हुई, the estimated mean efficacy of levetiracetam was 68.5%, which is very very high. फिर it can be used as the first line therapy in benzodiazepine resistant patients. The highest efficacy was attributed to valproate, लेवेटिरासेटाम एंड फिनोबार्बिटोन. मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मैं लोगों को मना करता हूं कि फिनोबार्बिटोन ना दें. क्यों ना दें? कुछ इसकी मुश्किलात हैं, कोई मुज़िर असरात हैं, कोई एडवर्सिटीज़ हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं. वाई शुडंट वन गिव फिनोबार्बिटोन? कैन इट डू एनी हार्म टू द पेशेंट? बच्चों में तो आप देते होंगे ना फिनोबार्बिटोन, देते ही नहीं देते? आप तो देते होंगे, डॉक्टर साहब ने तो सर हिला दिया है. ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु आर गिविंग. देखिए, एक ज़माना था फ्रॉम 1981, जब से मैंने शुरू किया, बूढ़ा हो गया हूँ वैसे, ठीक है. थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू, मेड माई डे. तो 81 से लेके 85 तक हमारे पास सिर्फ फिनोबार्बिटोन थी. सिविल अस्पताल में OPD में 100-150 मरीज देखते थे, सिर्फ फिनो थी और फेनिटोइन थी, और बाद में बहुत ही वेलप्रोइड आ गई. तो हर बंदे को फिनोबार्बिटोन देते थे. प्रॉब्लम क्या होता था? बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. देखिए, फिनोबार्बिटोन, ये सुन ले, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये लोग बड़ा फिनो लिखते हैं. फिनोबार्बिटोन इज अ वेरी पोटेंशियल एंटी एपिलेप्टिक. एपिलेप्सी को तो वो ट्रीट कर लेती है. अगर कोई एपिलेप्सी है, जो स्पेशली दोज एपिलेप्सीज व्हिच आर इंट्रैक्टेबल एंड स्टेटस, उनमें वो काम जरूर करती है. बट एक चीज़ आपको बता दूं कि स्टेटस अगर आप उसको विड्रॉ कर दें तो बंदे मर जाते हैं. बंदे मर जाते हैं. दी ओनली ड्रग दैट कैन गिव यू अ स्टेटस एपिलेप्टिकस, और अगर आप स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट नहीं करेंगे, 4 गोली देंगे, फिर तो कंट्रोल हो जाएंगी. लेकिन होगा क्या? इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशन तो कोई भी नहीं होगी. सबसे बड़ी बात है कि यू कैन नॉट विड्रॉ द ड्रग. एक दफ़ा आपने फिनो पे डाल दिया किसी मरीज को डॉक्टर साहब, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और अगर निकालेंगे भी तो कई महीनों के बाद टैपर करेंगे उसको, वरना द पेशेंट विल गो इनटू स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड बहुत ज़्यादा फेटालिटीज़ हैं. द हाईएस्ट फेटालिटीज़, सबसे ज़्यादा लोग स्टेटस से मरते हैं. तो इसीलिए अगर कोशिश करें, अगर आपके पास पेशेंट के पास, तो बहुत गरीब लोग भी हैं. तो अभी ऐसे भी लोग हैं जो फिनोबार्बिटोन के अलावा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते. वो तो बहुत ही मजबूरी है. वरना फिनोबार्बिटोन बच्चों में इट कॉजेज स्कोलास्टिक डिक्लाइन. स्कोलास्टिक किसको कहते हैं? स्कूल.
आप देखेंगे जो बच्चे को आप फिनोवाबिट डालेंगे वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको आप एग्जामिन करेंगे, उसकी साइकी की एग्जामिन करेंगे तो ही विल बी बिलो पार इन स्टडीज। दूसरी बात क्या है, इरिटेबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉज करता है फिनोबार्बिटोन। इट्स अ वेरी गुड ड्रग, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन यूजिंग फिनोबार्बिटोन एंड विड्रॉइंग द ड्रग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। लेविटिराज़ेम हैज़ मिनिमल ड्रग इंटरेक्शन फॉर एडजंक्ट थेरेपी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास तो हज़ारों पेशेंट हैं। आपको मैं बताऊँ कितना मरीज है, 40 साल में तो 2 लाख से ऊपर हो गया होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उठा के कोई एपिलेप्टिक आता है, आप लेविटिराज़ेम भी दे देते हैं, आप उसके साथ वेलफ्रेड भी दे देते हैं, उसके साथ फिनोबार्बिटोन भी दे देते हैं, टेग्रॉल भी दे देते हैं। नो, यू कांट डू दैट। रिमेंबर, इंटरैक्शन ऑफ ड्रग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंजाइम इंड्यूसर होते हैं, यू नो व्हाट आर एंजाइम इंड्यूसर्स, जो पहले जो ओल्ड फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन एंड वेलप्रोइड, ये दीज आर एंजाइम इंड्यूसर्स, ये दूसरी ड्रग्स को की लेवल्स को कम कर देते हैं। तो यू कैनॉट यूज these with levetiracetam. So please, you have to be very careful when combining anti-epileptic therapy. Very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर नहीं करेंगे तो लोग कहते हैं साहब हमने तो लेविटिराज़ेम दे दिया, हम डोज बढ़ाए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा साथ में तो आप टेग्राल दे रहे हो यार, टेग्राल तो वैसे ही उसको कम कर रहे हैं। आप फिनोबार्बिटोन दे रहे हो, फेनिटोइन दे रहे हो, यार वो नहीं दे सकते। यू कैन नॉट कंबाइन एंजाइम इंड्यूसर्स विद द न्यूअर ड्रग्स, इवन लैकोसेमाइड। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच।